Yeah, so continuing with the next example, here we are converting DFA to RE. So ये रहा अपना डायग्राम. रूल्स आर सेम जैसे हमने एनएफए में देखा था कि हर स्टेट्स का हम इंडिविजुअल इक्वेशंस लिखेंगे, देन विल ट्राई सिंप्लीफाइंग इट एंड देन विल पुट ऑल द इक्वेशंस इन द फाइनल स्टेट. So as you can see over here, the Q1 is the start state and the final state as well. So starting one by one, Q1 के लिए हम लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे एक unknown input है, so that is an epsilon value. Then check the incoming edges that are coming to Q1. So incoming edges आ रहा है Q2 से for an input B और एक आ रहा है Q3 से for an input A. So for Q1 it will be epsilon plus Q2B plus Q3A. So this is equation 1. Similarly check for Q2. Q2 पे if you see there is only one incoming edge that is from Q1 on input A. So we have Q1A, that is equation 2. Q3 के लिए we have one incoming edge from Q1 on input B. So Q3 के लिए equation will be Q1B. So this is equation number 3. And the final state, or say sorry, not final, but the last state of the diagram, that is Q4. We are having an input from Q3, from Q2 and Q4 itself. So Q4 का equation is Q2A plus Q3B plus Q4A plus Q4B. क्योंकि A and B दोनों पे है तो Q4A and Q4B ऐसा अलग अलग लिखना पड़ेगा. So this is equation 4. Now as you can see these are already in simplified form, इससे और कुछ simplify करने की जरूरत है नहीं. So we'll directly substitute the values in the final state. So Q1 का equation is this, but if you see Q2 can be substituted as Q1A. So Q2 के जगह पे Q1A लिखा है और ये B as it is. Q3 के जगह पे Q1B लिखा है. So Q3 के जगह पे यहाँ पे Q1B है and A as it is. It's from equation 2 and 3. Now if you see in this equation Q1 is common. So bracket में क्या बचा? AB plus BA. So again this equation is of the form R equals to Q plus RP, where R is nothing but Q1, epsilon को हमने Q लिया है and ये पूरा factor हमने P लिया है. So by Arden's theorem we know that this is equals to QP star. So Q1 equals to Q, that is epsilon, and P star. Again we know that epsilon into R is nothing but R. So ये star के साथ अगर हम इसको पूरा R consider करेंगे, so it will be epsilon into R, that is R. So that is this value itself. So Q1 equals to AB plus BA the whole star. So now if you see we have expressed, or say we have written the regular expression in the form of the input symbols. All the input symbols are covered, hence it is the required regular expression for the given DFA. Now the next type we see is conversion of RE to FA. पहले हमने देखा था regular expressions क्या है, कैसे लिखते हैं. Then we saw finite automata to RE, that is NFA to RE and then DFA to RE. Now we are converting RE to FA उल्टा. So simplest examples अगर हम देखें कि ये regular expression दिया है A plus B, तो इसका मतलब होता है that you can have an input A or you can have an input B. So whenever you have a plus sign, this is the small technique we should remember कि जब भी plus sign होगा तो हम क्या करेंगे, दो स्टेट्स ही लेंगे दो इनपुट सिंबल के लिए. लेट्स से द फर्स्ट स्टेट इज कैपिटल ए, सेकंड स्टेट इज बी, सच दैट अगर इनपुट सिंबल ए आता है तो भी वो स्टेट बी पे जाएगा, अगर इनपुट सिंबल बी आता है तो भी वो ए से बी पे जाएगा. दिस वे यू कैन शो, और सिंपली यू कैन शो एज देयर आर स्टार्टिंग स्टेट, एंडिंग स्टेट, इनपुट सिंबल ए या बी आए, ट्रांजिशन यहीं पे होगा. सो प्लस साइन के वक्त अपने पास सिर्फ टू स्टेट्स विल बी देयर. कॉन्कैटिनेशन साइन जब आएगा a into b, that is a b, so we'll have one more state. क्यों? क्योंकि ये क्या होता है, a और b होता है, इसका मतलब a and b दोनों होना चाहिए. तो क्योंकि a and b होगा, इट मीन्स कि अगर स्टार्ट स्टेट से हम इनपुट a आता है तो इट शुड मेक अ ट्रांजिशन टू नेक्स्ट स्टेट, दैट इज b, और वहां पे इनपुट सिंबल b आता है, देन इट शुड मेक अ ट्रांजिशन टू नेक्स्ट स्टेट, दैट इज c. हेंस वी आर एडिंग वन मोर स्टेट. Whereas over here क्या है, ये और है, यानी a और b. So either a or b is acceptable in the state. This is and, this is a and b. Concatenation का मतलब दोनों ही symbols जरूरी होता है. And closure we all know that a star, a closure is nothing but a self loop to itself. So let us see different examples. Like I have an equation b a star b. So this is nothing but, you can have strings of all the type which is starting from b, having any combinations of a b but ending with b.
सो इसका मतलब क्या है कि ये जो स्ट्रिंग है वो बी से स्टार्ट होना चाहिए और बी पे एंड भी होना चाहिए. सो इफ यू कैन हैव BB, why BB? Because it says A closure. A closure मतलब epsilon values are allowed. So if epsilon values in between make no sense, so you can just write B and B. You can also write BAB. You can write BAAB. यानी A closure A का पैटर्न आप कोई भी ले सकते हो, but make sure that start and end symbol is B. So इसका ऑटोमेटा कैसे डिजाइन करेंगे? That we have an first state A, start state. अगर एक इनपुट आता है then it should make a transition to next state, that is B. एक क्लोजर है, क्लोजर मतलब a self loop as mentioned over here. So एक क्लोजर का self loop over here and then ending symbol is B. So B से अगर एक इनपुट B आता है then it will go to the final state. Similarly, let us see next example, A plus B into C. So in this case what we'll do, I said this is A और B. तो हमने वो पहले एग्जाम्पल में देखा था कि A और B में हम दो स्टेट्स लेंगे. इनपुट A आया तो भी वो B पे जाना चाहिए, इनपुट B आया तो भी वो नेक्स्ट स्टेट पे जाना चाहिए. दिस इज इनटू C, यानी इनटू यानी यहाँ पे कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर है. तो इसके लिए हमने एक थर्ड स्टेट लिया है. इसका मतलब ये है कि A या B में से कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, कोई भी सिंबल हो सकता है, लेकिन C मैंडेटरी है दैट द स्ट्रिंग विल एंड विद C और से BC. सो ओवर हियर यानी C होना चाहिए, स्ट्रिंग में एंड विद AC और इट में एंड विद BC. सो C लास्ट में ही आएगा, इसके लिए C को हमने फाइनल स्टेट पे दिया हुआ है. दिस इज A इंटू BC क्लोजर. BC क्लोजर का मतलब जो भी स्ट्रिंग्स है वो BC से ही एंड होगा. सो यू कैन हैव अ स्ट्रिंग लाइक A. BC क्लोजर मतलब एप्सिलॉन भी हो सकता है, इसके लिए सिर्फ A, या ABC, ABC, BC, ऐसा कंटिन्यूएशन, which simply shows that the string will end in B and C. So what do we do is, first we'll take a start state. इसमें अगर इनपुट A आता है तो वो ट्रांजिशन होना चाहिए नेक्स्ट स्टेट पे, दैट इज B. B पे अगर एक इनपुट सिंबल आता है B तो वो नेक्स्ट स्टेट पे जाना चाहिए. वहां से C आता है तो ये वापस आना चाहिए. इसलिए हमने यहाँ पे इसको फाइनल किया है क्योंकि द सिंबल इज एंडिंग इन C, यानी B के बाद C आया इमीडिएटली तो ही वो फाइनल स्टेट पे जाएगा, तो ही वो स्ट्रिंग एक्सेप्टेबल होगा. सो दैट्स व्हाई वी आर हैविंग एन इनपुट A. B आया तो स्टेट C पे जाएगा और C आया तो वापस स्टेट B पे आएगा. So this is like A, B, C. So that is why it is acceptable. See, examples are taken over here. Convert the following RE to FA. So ये देखो, अभी ये जो ऑपरेटर है, दिस ऑपरेटर इज सिमिलर टू द प्लस ऑपरेटर, यानी और ऑपरेटर जो हमने अभी यूज किया है. सो दिस यू कैन रीड इट एज A प्लस B स्टार, ABB प्लस A स्टार B. ऐसा. अगेन एज आई मेंशन कि डिफरेंट सिंबल्स यूज किया है बिकॉज डिफरेंट बुक्स कैरी दैट सिंबल, सो देयर शुड नॉट बी कंफ्यूजन. So now when we are trying A plus B star, so as I said A plus B closure है, तो या तो A आए या तो B आए, क्लोजर है मतलब वो सेल्फ लूप होता है. तो मैंने स्टेट 1 लिया है, स्टार्ट स्टेट बनाया है और A प्लस B द क्लोजर को सेल्फ लूप दिया है. उसके बाद इनटू है यानी नेक्स्ट स्टेट तो लेना ही पड़ेगा. सो व्हाट विल डू, A B B है यानी इट इज एक्सेप्टिंग A. इनटू है मतलब प्लस साइन नहीं है बीच में, कॉन्कैटिनेशन साइन है, डॉट प्रोडक्ट है. तो इसके लिए जितने सिंबल्स रहेंगे उतना स्टेट लेना पड़ेगा, यानी उससे ज्यादा एक हमेशा. सो 3 सिंबल्स देयर विल बी 4 स्टेट्स. सो इफ यू कैन सी 1 2 3 एंड 4. सो A प्लस B क्लोजर हो गया. देन वी हैव A. सो अगर A आता है तो मेक अ ट्रांजिशन टू सेकेंड स्टेट, देन B आता है मेक अ ट्रांजिशन टू थर्ड स्टेट, और फिर B आता है देन मेक अ ट्रांजिशन टू द फोर्थ स्टेट, दैट इज द फाइनल स्टेट. क्यों? क्योंकि ये स्ट्रिंग जो है वो B पे एंड हो रहा है, सेकेंड B पे, तो इसके लिए ये जो B है यहाँ पे एंड हो रहा है. प्लस A प्लस B, तो दिस प्लस क्लोजर है, दिस प्लस क्लोजर इज विदाउट एप्सिलॉन वाला क्लोजर. ये डिफरेंस मैंने आपको पहले भी बताया था. A स्टार होता है मतलब विद एप्सिलॉन वैल्यूज क्लोजर होता है, A प्लस मतलब विदाउट एप्सिलॉन वैल्यूज क्लोजर होता है. सो इफ यू सी कि प्लस चाहिए तो वो अगेन स्टार्टिंग स्टेट से हम ले सकते हैं. यहाँ पे प्लस है यानी ऑल टुगेदर डिफरेंट ऑपरेशन है, तो यहाँ से आएगा A, देन इट विल बी लाइक क्लोजर A प्लस, और अगर B आता है तो ही वो नेक्स्ट स्टेट पे जाएगा. क्यों? क्योंकि B इज एंडिंग ओवर हियर. सो दिस इज द रिक्वायर्ड FA फॉर द गिवन RE. Similarly, going on for the next example. Okay, that better we see in the next video.